قازقستان کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان۔ نائب وزیر اعظم مراد نرتیلیو کی اسلام آباد میں وزارت خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پاکستان اور قازقستان کے نائب وزراء اعظم کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ قازقستان کے وفد کی وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، رانا تنویر حسین اور حنیف عباسی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ تجارتی راہداریوں اور بہترین ذرائع مواصلات ہماری ترجیح ہیں۔ دونوں ممالک باہمی تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزراء کی گفتگو۔ نائب وزیر اعظم مارات نورتیلو کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کی مضبوطی کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر زور۔ وزیر خزانہ سے ایکومین پاکستان کی کنٹری ہیڈ ڈاکٹر عائشہ خان کی ملاقات۔ فریقین کا پاکستان میں پائیدار زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایکومین کے وفد نے پاکستان کے لیے اپنے $90 ملین کے ایگریکلچر ریزیلینس فنڈ پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایکومین کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات میں امریکی کمپنیز کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ وفد نے تانبے، سونے اور نایاب معدنیات میں سرمایہ کاری اور کانکنی میں ویلیو ایڈیشن، پروسیسنگ اور بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ FWO اور USSM کے درمیان تاریخی معاہدہ، 2 مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط۔ USSM پاکستان میں $500 ملین کی سرمایہ کاری سے پولی میٹالک ریفائنری قائم کرے گا۔ پائیدار ترقی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے NLC اور مٹینجل گروپ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، شیرشاہ بند پر شدید دباؤ۔ ملتان ہیڈ محمد والا پر دوسرا سیلابی ریلا پہنچ گیا۔ ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ۔ چناب اور ستلج نے جلال پور پیروالا میں تباہی مچا دی۔ پانی کی تیز بہاؤ سے بند ٹوٹ گیا۔ درجنوں بستیاں زیر آب۔ جلال پور پیروالا سے آبادی کا محفوظ انخلا جاری۔ 3600 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاک آرمی اور فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار۔ بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے، جبکہ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب۔ چناب میں خان کی ہیڈ ورکس پر نچلے درجے کا، جبکہ قادر آباد میں نچلے درجے کا سیلاب۔ راوی شادرہ کے مقام پر درمیانے درجے، جبکہ بلو کی ہیڈ ورکس کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ امدادی ادارے اور محکمے الرٹ۔ NDMA کا سندھ کے جنوبی اضلاع میں شدید بارشوں کا الرٹ۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، تھرپارکر، مٹھی، عمرکوٹ، میرپور خاص اور ٹنڈو آدم میں بارش متوقع۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ جوب، لورالائی، سبی، ڈیرہ بگٹی، سوئی، خزدار، آوران اور لسبیلا کے علاقوں میں آندھی طوفان کے ساتھ بارش متوقع۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی وارننگ، عوام احتیاط کریں۔ NDMA۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول اداروں کی کارروائیاں جاری۔ مظفر گڑھ میں ہزاروں افراد اور مویشی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور طبی کیمپس بھی قائم۔ پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں کو متاثرین کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج اور دیگر ادارے عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ مشکل کی گھڑی میں ذمہ دارانہ صحافت کے ساتھ PTV نیوز پیش۔ سیلابی صورتحال میں PTV نیوز کا مؤثر کردار۔ PTV قومی ذمہ داری نبھاتے ہوئے فرنٹ لائن کوریج دے رہا ہے۔ ملک بھر سے نمائندے دریاؤں کی سیلابی صورتحال سے باخبر رکھ رہے ہیں۔ متاثرہ عوام کی آواز مؤثر انداز میں حکومت تک پہنچائی جا رہی ہے۔
ریسکیو آپریشنز اور انتظامیہ کی سرگرمیوں کی براہ راست لمحہ بلمحہ رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی عام نشست پر ضمن انتخاب کے لیے پولنگ جاری، 363 اراکین صوبائی اسمبلی اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ اور سلمہ اعجاز کے درمیان مقابلہ، سینیٹر منتخب ہونے کے لیے پنجاب اسمبلی کے 180 ووٹ درکار۔ مذکورہ نشست سینٹ رکن اعجاز احمد چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی۔ پی ٹی آئی کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ہے، عوام ان کے مکروہ چہرے پہچان چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے منظم سازش کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ آئین و قانون سب کے لیے برابر ہے، ملک کا قانون کسی کو بھی فتنہ یا فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جس گروہ کے لوگ سیاسی ہی نہیں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ۔ حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیز کے ثمرات، پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کے بلند ترین سطح پر، 100 انڈیکس میں 1000 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,57,088 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت ادویات سازی کی صنعت میں جدت اور سرمایہ کاری کو فروغ، ادویات سازی صنعت میں اہم ادویات کی بلا تعطل فراہمی اور جدید علاج معالجے کی سہولیات متعارف، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع، نئی ترامیم اصلاحی اقدامات کو عالمی اصولوں سے ہم آہنگ بنانے میں معاون۔ پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا، مختلف اضلاع میں اب تک 7,27,000 لیٹر پانی تقسیم کیا جا چکا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی کو مرحلہ وار بڑھایا جا رہا ہے، الٹرا فلٹریشن ہینڈ پمپ بھی متاثرین تک پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ روز صاف پانی اتھارٹی کی جانب سے 1,87,500 لیٹر پانی فراہم کیا گیا۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب۔ 9 ستمبر 1965 جنگ کا 9واں روز، جرت و جواں مردی کی نئی داستان رقم، دشمن کو نارووال کے قریب جسر پل سونامرگ میں شدید نقصان، پاک فوج نے پٹھان کوٹ جودھپور ایئر بیس راکھ کا ڈھیر بنا دیے، شاہینوں نے 28 بھارتی جہاز فضا میں، 2 اینٹی ایئرکرافٹ گن سے 36 زمین پر کھڑے، جبکہ 15 جہاز سائکونڈا ایئر بیس پر تباہ کر دیے۔ خراشی بارڈر ٹرمینل کرم پر پاک فوج کے تعاون سے پاک افغان سرحدی جرگہ، مائدین، مشران اور تاجروں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، افغان وفد کا ٹرمینل پر موجود پاک افغان بھائی چارہ اسپتال کا دورہ، اسپتال پاکستان کی طرف سے انسانی ہمدردی کی عمدہ مثال، فریقین کا تجارت، صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئی جی ایف سی بلوچستان کا بلوچ ریزیڈینشل کالج تربت کا دورہ، طلبہ کا پاکستانیت کے موضوع پر ٹیبلو اور تقاریر پیش، نوجوانوں کے جذبے اور وطن سے محبت کو آئی جی ایف سی نے قابل تحسین قرار دیا، تعلیم یافتہ نوجوان ہی قوموں کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ آئی جی ایف سی بلوچستان۔ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی میں دوغلا پن، امریکہ سے تعلقات میں دراڑ کا باعث، قلیل مدت کے لیے امریکہ بھارت تعلقات میں بہتری ممکن، تاہم طویل مدت میں باہمی اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ چین کے حوالے سے بھارت کا غیر واضح موقف بھی امریکہ کے لیے باعث تشویش، عالمی تناظر بغیر مستقل مزاجی بھارت کو ناقابل اعتبار شراکت دار بنا رہی ہے۔ چائنا ڈیلی کی رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملے جاری، 24 گھنٹے میں 84 فلسطینی شہید، 338 زخمی۔ حملوں کے بعد اسرائیل کی غزہ کے مکینوں کو فوری طور پر شہر چھوڑنے کا انتباہ، قطر اور امریکہ کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان کوششیں بھی جاری، حماس کی 60 روزہ جنگ بندی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش، اسرائیل اب بھی معاہدے کی شرائط پر غور کر رہا ہے۔ ایشیا میں کرکٹ کی جنگ، T20 فارمیٹ پر ایشیا کپ کا آج سے متحدہ عرب امارات میں آغاز،
8 टीम्स 19 कांटेदार मुकाबले। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग अबुधाबी में मध्य मुकाबला शाम 7:30 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। टेनिस डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 टाई। पाकिस्तान डेविस कप टीम पैराग्वे पहुंच गई। पाकिस्तान और पैराग्वे के दरमियान वर्ल्ड ग्रुप 2 मुकाबला होगा। इवेंट में कौमी स्क्वाड की क़यादत मोहम्मद हसीब असलम करेंगे। टूर ऑफ बर्तानिया साइकिलिंग इवेंट। फ्रांस के रोमेन ग्रेगोयर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। 6 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का आखिरी मरहला नीदरलैंड्स के ओला वोइच ने जीता। रोमेन ग्रेगोयर इख्तितामी मरहले में 13वें नंबर पर रहे, ताहम रिमको इनोपोइल पर 2 सेकंड की मजमूई बढ़तरी के साथ टाइटल के हकदार करार पाए। बरतानवी साइकिलिस्ट गैरन थॉमस साइकिलिंग मुकाबलों से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा अस्पाना। एक दिन आराम के बाद साइकिलिस्ट आज दोबारा एक्शन में नजर आएंगे। रेस का 16वां मरहला पोयो से मॉस तक 172 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लीडर्स जर्सी पर डेनमार्क के जॉन स्विंगेगार्ड का कब्जा बरकरार। पुर्तगाल के जुआओ अल्मीडा 48 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुराद नरतेलो का आला सतह वफ़द के हमरा दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर-ए-आज़म के वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ट्रांसपोर्ट मारात नोर्तिलियो ने वफ़द के हमरा वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर हुसैन और मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़रा ने कहा कि दोनों ममालिक ज़राए आमदोरफ्त में खातिर ख्वाह पेशरफ्त कर सकते हैं और बाहमी तजर्बात से इस्तिफ़ादा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि तजारती राहदारियाँ और जदीद ज़राए मवासलात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। रेल और सड़क के जरिए रवाबित बढ़ाने से तजारती हजम में नुमाया इजाफा होगा। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और डिप्टी ट्रेड मिनिस्टर ने भी वफाकी वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें मवासलात समेत मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों पर गौर किया गया। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एक्यूमेन पाकिस्तान की CEO और कंट्री हेड डायरेक्टर आयशा खान ने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वफ़द ने वफाकी वज़ीर को पाकिस्तान के लिए 9 करोड़ डॉलर्स के एग्रीकल्चर रेजिलियंस फंड पर पेशरफ्त से आगाह किया, जो एक जदीद फाइनेंसिंग सहूलत है जिसका मकसद ज़राई शोबे में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने और मुवाफ़क़त पैदा करने में मदद फ़राहम करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती ख़तरात से सबसे ज़्यादा दुचार हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान के ज़राई शोबे को मज़ीद मुस्तहकम, पायदार और मौसमियाती लचकदार बनाने के लिए ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयाता किया। इस्लामाबाद में 16वीं पाक तुर्की मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और तुर्क वज़ीर दिफा याशार गोलर ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। इजलास में पाक तुर्की तजारती ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक ने तजारत के मुआहिदों पर अमल दरामद तेज़ करने के अज़्म का इज़हार किया। 16वीं JMC का प्रोटोकॉल मुस्तकबिल के ताउन के रोड मैप करार दिया गया। जाम कमाल खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती वक्त के हर इम्तिहान पर पूरी उतरी है। तुर्क सरमायाकारों को खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सहूलियात देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई,
तेल और गैस LNG शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दिफाई टेक्नोलॉजी, मुश्तरका पैदावार और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। फैसलाबाद में पाक तुर्की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर संग मील साबित होगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटेंजल ग्रुप पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सिराज से मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वफ़द ने पाकिस्तान में तांबे, सोने और दीगर कीमती धातु समेत वसी मादनी ज़खायर में सरमायाकारी और कानकरी में वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस सिलसिले में 2 अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और USSM के दरमियान मुआहदे के तहत इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी समेत पाकिस्तान से एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बरामद और बाद अज़ां पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी पर इत्तिफाक हुआ। दोनों कंपनीज के दरमियान ये शराकत दारी टेक्नोलॉजी की मुंतकली, रोजगार के मौके और पायदार तरक्की का बायस बनेगी। अमरीकी कंपनी USSM सेंट लुइस और मिसूरी में कायम एक नुमाया माइनिंग, रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग का इदारा है। मुआहदे में दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी सनतों के लिए अहम मादनियात में ताउन का फ्रेमवर्क वज़ा किया गया है। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और मोटेंजल ग्रुप ने भी शराकतदारी पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत पाकिस्तान में लॉजिस्टिक और तामीरात के शोबे में आलमी मेयार के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ये पेशरफ्त पाकिस्तान में मादनियात और लॉजिस्टिक के शोबे में आलमी सरमायाकारी के फ़रोग में संग मील साबित होगी। मोटेंजल ग्रुप आलमी सतह पर इंजीनियरिंग और तामीरात में मारूफ मकाम रखता है और मशरिक़ वुस्ता और एशिया में अपने मंसूबों को वसअत दे रहा है। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। तर्जुमान PTM के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ है। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक है, जबकि सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसेक है। दरियाए चिनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 69,000 क्यूसेक है, जबकि खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक है। हेड त्रीमू के मकाम पर पानी का बहाव 4,16,000 क्यूसेक है। पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 4,52,000 क्यूसेक है। दरिया रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक, जबकि शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 59,000 क्यूसेक है। बल्लो की हेडवर्क्स के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसेक है। मुजफ्फरगढ़ से खबर आपको देते हैं। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज और सिविल इदारों का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और सिविल इदारों ने हज़ारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम करके मुतासरीन को अद्वियात और खुराक की सहूलत फराहम की जा रही है। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को मुतासरीन सैलाब की जानिब से सराहा गया। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे अवाम की शाना बशाना हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब ज़दगान तक पीने के साफ पानी की फराहमी का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। अब तक पंजाब साफ पानी अथॉरिटी ने मुतालिका ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से मजमूई तौर पर 7,27,000 लीटर पानी तकसीम किया है, जो 2,54,333 मुतासरीन तक पहुँचाया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ 17,500 लीटर पानी फराहम किया गया, जबकि 1 लाख बोतलें जिनकी गुंजाइश 19 लीटर है सैलाबज़दा इलाकों में पहुँचाई जाएंगी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंड पंप्स भी मुतासरीन तक पहुंचा रही है और मरहलावार फ्राहमी को बढ़ाया जा रहा है ताकि सैलाब मुतासरीन तक सेहत बख्श पानी बर वक्त पहुंच सके। तमाम मुतालिका इदारे मिलकर शहरियों की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बना रहे हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोधरा और जलालपुर पीरवाला से मुल्हका इलाके सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन का इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। दरियाए सतलुज लोधरा के मकाम पर इम्प्रेस ब्रिज पर गेज 13 फुट से तजावज कर चुकी है और दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला करोड़ पक्का लोधरा से होता हुआ जलालपुर पीरवाला के देही इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है।
अब तक की इतलात के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के शहर को सैलाबी पानी के पेश नज़र खाली करा लिया गया है। जिला लोधरा की दो तहसीलें लोधरा और करोड़ पक्का सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जबकि जलालपुर पीरवाला और लोधरा तहसील में हिफाजती बंद भी टूट गए। बस्ती मुंशीवाला, आदावान, बशीराबाद, जगीर होड़ा, विघामल, बस्ती बलोचा वाली, रतनवाला और टिब्बी वड्डा के वसी इलाके जेर आब आ चुके हैं। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में दिन रात ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। लोगों और उनके जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों अफराद को उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है, जबकि रह जाने वाले अफराद को तलाश करके निकाला जा रहा है। छतों पर पनाह लेने वाले मुतासिरीन को भी कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं और जिले इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद रहते हुए इनखला की निगरानी कर रहे हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। तहसील अलीपुर का नवाही इलाका अजमतपुर इन दिनों शदीद सैलाब में घिरा हुआ है। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि फसलें तबाह हो चुकी हैं। पाक फौज और ज़िला इंतजामिया मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक अलादित्ता बोसन तहसील अलीपुर के नवाही इलाका अजमतपुर के मकाम पर मौजूद हैं। जी अलादित्ता, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के नवाही इलाका अजमतपुर में, जहाँ सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। पाक फौज के दस्ते यहाँ पहुँच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इलाके की कई बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं, जबकि मुंजी, काटन और तिल की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। बारिश ने सैलाब की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है, जिससे मुतासरा अफराद दोहरी परेशानी का शिकार हैं। मैं ज़िला इंतजामिया का शुक्रगुजार हाँ, रेस्क्यू 1122 का शुक्रगुजार हाँ, पाक फौज का शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि उन्होंने लोगों को फ्लड दे विचों कढ़ के रिलीफ कैंपें तक पहुँचा दिता गया और उन्होंने मेहरबानी है। ज़िला इंतजामिया वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर मुतहरिक है और इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए जा चुके हैं, जहां सैलाब मुतासरीन को मुंतकिल किया जा रहा है और तमाम बुनियादी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। ज़िला इंतजामिया की अवाम से गुजारिश है कि वह अफवाहों पर कान न धरे, सिर्फ सरकारी हिदायत पर अमल करे और ख़ुद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करे। अलादित्ता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। दरियाए सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस कई मौजाजात पानी की जद में है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मुख्तार से। भारत की जानिब से आबी जारियत के बायस इस वक्त बहावलपुर में दरिया सतलुज का पानी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर और यहाँ पर पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि 2023 में जो पानी की मिकदार यहाँ थी वो 11 फुट और 6 इंच थी। इंतजामिया मुसलसल सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रही है और सैलाब मुतासरीन को उन इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। अब तक इंतजामिया ने 14,000 के करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि तहसील अहमदपुर शर्किया में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमती नुमाइंदगान भी सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं और उनमें राशन भी तकसीम कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू किया जाए, इनको खाना पीना मिलना चाहिए, इनको दवाई मिलनी चाहिए, इनके लिए बोट रेस्क्यू वाले हों ताकि इन्हें रेस्क्यू किया जाए। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और हुकूमत इस्लामाबाद में 16वीं पाक तुर्किया मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और तुर्क वज़ीर दिफा याशार गोलर ने की थी। इजलास में तिजारती माहितों पर अमल दरामद तेज़ करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तुर्किया मुश्तरका बैनुल वज़ारती कमीशन का इजलास, इस मौके पर मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और तुर्क वज़ीर दिफा याशार गोलर इस कमीशन इजलास में मौजूद हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सरमायाकारी खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सहूलतें फ़राहम करने, काबिल तजदीद तवानाई, तेल और गैस, दिफाई टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। जाम कमाल खान ने तुर्क सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सहूलतें देने का ऐलान किया और फैसलाबाद में पाक तुर्की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर के बाहमी ताउन को संग मील करार दिया है। पाकिस्तान और तुर्की का 16वां मुश्तरका
बैनुल वज़ारती कमीशन का इजलास। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो रहे हैं। पाकिस्तान तुर्की मुश्तरका बैनुल वज़ारती कमीशन इजलास इस्लामाबाद में हुआ और वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा याशार गुलर ने इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत की। और इस इजलास के बाद वज़ीर तिजारत जाम कमाल और तुर्की के वज़ीर दिफा ने मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सारे मरहले में हिस्सा लेने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करना बाइकॉट नहीं बल्कि राह फरार है, मगर अदालत ने इस इलेक्शन को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि पीटीआई के पास राह फरार के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था और उनके अपने मेम्बरान पर एतमाद नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम पीटीआई वालों के मकरू चेहरे पहचान चुके हैं और अब पीटीआई का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि पीटीआई कारकुनान की मौजूदा रविश इंतहाई अफसोसनाक है। पीटीआई ने गालिम गलोच और के कल्चर को फ़रोग़ दिया। पीटीआई ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। आइन और कानून सब के लिए बराबर है। मुल्क का कानून किसी को भी फितना या फसाद फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पंजाब असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। शरीफुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। पंजाब से सेनेट की ये नशिस्त एजाज अहमद चौधरी की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। खाली नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह और अपोजिशन की तरफ से सलमा एजाज के दरमियान मुकाबला है। सेनेट इलेक्शन में 363 अरकान पंजाब असम्बली वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ जो शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। और पीटीआई के कारकुनों ने रावलपिंडी में अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान सवाल पूछने पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और गालिम गलूच भी की। सहाफ़ियों ने पीटीआई कारकुनान के रवैये के खिलाफ अलीमा खान की मीडिया टॉक का बाइकआउट कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट करने पर पीटीआई कारकुनों ने सहाफ़ी पर मज़ीद तशद्दुद किया और दीगर सहाफ़ियों को धक्के भी दिए। सहाफ़ी बरादरी ने पीटीआई कारकुनों के रवैये की मज़म्मत करते हुए कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। पीटीआई क़यादत को मामले का नोटिस लेना चाहिए। सहाफ़ियों का कहना है कि माजी में पीटीआई कारकुनों की जानिब से ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ भी नारवा सलूक रवा रखा गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सहाफ़ी तैयब बलोच को सिर्फ इख्तिलाफ़ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इख्तिलाफ़ राय पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और इस मामले पर भी भरपूर साथ दूंगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इन लोगों की सोच अदम बर्दाश्त पर मबनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पीटीआई कारकुनों के सहाफ़ी पर हमले की मज़म्मत करते हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक और आज़ादी इज़हार के लिए आवाज़ उठाई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई कारकुनों की तरफ से सहाफ़ी पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए कहा कि मनसूबाबंदी के तहत सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स इस वक्त 560 से ज़्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,56,615 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,57,000 की हद उबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,57,088 पर भी पहुंची। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि मार्केट में तेज़ी की वजह हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क के बेहतर होते हुए मुआशी इशारिये हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया चीन के कामयाब दौरे के मौके पर तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए होने वाले MOUs पर दस्तखत के बाद मार्केट में तेज़ी बरकरार है। SIFC की मौसर हिकमत अमली की बदौलत फार्मास्यूटिकल सनत में जिद्दत और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। PPMA के मुताबिक नई तरमीम इस्लाहात इक़दामात को आलमी असूलों से हम आहंग बनाने में मुआवन साबित होंगी। नई तरमीम से फार्मास्यूटिकल सनत में अहम अद्वियात की विरातातुल फ़राहमी और जदीद इलाज की सहूलियात मुतारिफ हो गईं, जिससे जदीद अद्वियात की तैयारी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। बेहतरीन सहूलतकारी के एतराफ़ में चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने तौकीरुल हक के खुसूसी ख़त के ज़रिए SIFC के साथ इजहार तशक्कुर किया। SIFC के इक़दाम से फार्मास्यूटिकल समेत दीगर शोबों में भी सरमायाकारी और तरक्की की राहें हमवार हुई हैं। 9 सितंबर 1965 को पाक फ़ौज ने भारत को 3 महाजों पर नाकाबिले फरामोश शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने नारोवाल के करीब जसरपुल का दिफा करते हुए भारतीय फ़ौज को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसमें लेफ्टिनेंट कलीम महमूद ने
बहादुरी से लड़ते हुए शहादत हासिल की। जबकि भारतीय इंजीनियर्स की टीम को पाक फौज ने सोनामर्ग के मगरबी मुकाम पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय पठानकोट और जोधपुर एयरबेस पाकिस्तानी फौज के हाथों मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। शाहीनों के हाथों 28 भारतीय जहाज हवा में, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन से 36 जमीन पर खड़े और इसके अलावा 15 जहाज क्लाइकोंडा एयरबेस पर तबाह कर दिए गए। भारत को तमाम महासों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारतीय फौज पसपाई का शिकार हो रही थी। पाक फौज के जवानों ने हिम्मत और दलेरी की नई दास्तानें रकम की। 1965 की जंग के दौरान जर्री जांबाजों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। जंग के 9वें रोज पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजादा गुल और मेजर मोहम्मद अशरफ खान ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद अशरफ खान का ताल्लुक सुपोर्ट बटालियन से था और उनकी जिम्मेदारियों में सियालकोट का दिफा शामिल था। 8 सितंबर को इस बटालियन ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। 9 सितंबर को दुश्मन भारत ने सियालकोट कैंट की जानिब पेशकदमी शुरू की, जिसकी इत्तला मिलने पर मेजर मोहम्मद अशरफ खान ने दुश्मन की पेशकदमी को रोकते हुए उनके 2 टैंक तबाह कर दिए। मेजर मोहम्मद अशरफ अपनी जीप पर मैदान जंग का जायजा ले रहे थे कि दुश्मन का फायर लगने से जामे शहादत नोश कर गए। लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद गुल आर्मर रेजिमेंट की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने कसूर की जानिब पेशकदमी करते दुश्मन भारत को बहादुरी के साथ बॉर्डर की जानिब धकेल दिया और 8 सितंबर को खेमकरन सेक्टर पर कब्जा कर लिया। 9 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद गुल वालथवार रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश का आगाज़ किया और दुश्मन की सख्त मज़ाहमत के बावजूद इसमें कामयाब रहे। वालथवार रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने के बाद दुश्मन ने इसका कंट्रोल हासिल करने के लिए भरपूर हमला किया, जिसके दिफा के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद गुल शहीद हो गए। कराची बॉर्डर टर्मिनल कुर्रम पर पाक फौज के ताउन से पाक अफगान सरहदी जरगा मुनाकिद हुआ। दोनों ममालिक के माहिदीन, मिस्रान और ताजरों ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अफगान वफ़द ने कराची बॉर्डर टर्मिनल पे मौजूद पाक अफगान भाईचारा हस्पताल का दौरा किया और फ्राहम करदा तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक अफगान भाईचारा हस्पताल अफगान शहरियों के लिए पाकिस्तान की तरफ से इंसानी हमदर्दी की उम्दा मिसाल है। जिरगे में दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान खैर सगाली और अमली ताउन को फ़रोग देने पर जोर दिया गया। IGFC बलूचिस्तान ने बलोच रेजिडेंशियल कॉलेज तुर्बत का दौरा किया। इस मौके पर तलबा ने पाकिस्तानियत के मौजू पर टेबलो और तकारीर पेश की, जिन्हें हाज़रीन ने भरपूर सराहा। नौजवानों के जज्बे और वतन से मोहब्बत को IGFC ने काबिल तहसीन करार दिया। IGFC ने अपने खिताब में कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान ही कौमों की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं और नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में खुदगर्जी, तवाज़ुन के फुकदान और गैर मुस्तकिल मिजाजी नुमाया है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमरीका के ताल्लुकात अब नशेब व फराज का शिकार हो चुके हैं। कलील मुद्दत के लिए अमरीका भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन तवील मुद्दत में बाहिमी एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताउन महज सतही हद तक महदूद रहने का इम्कान है। चाइना डेली ने लिखा है कि रूस के साथ दरीना तस्वीराती वाबस्तगी भी अमरीका भारत ताल्लुकात की मजबूती में बड़ी रुकावट है। चीन के हवाले से भारत का गैर वासे और मुबहम मौक़िफ़ भी अमरीका के लिए तशवीश का बाइस बना है। दूसरी जानिब वो रूस से असलहे की खरीदारी और तेल की दरामदात जारी रखे हुए है। ये इक़दामात अमरीका की पाबंदियों और खारजा पॉलिसी के मुनाफी हैं। गजा में इजरायली फौज की फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। 24 घंटे में इजरायली हमलों में 84 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 338 जख्मी हो चुके हैं। हमलों के बाद इसराइल ने गजा के मकीनों को फौरी तौर पर इलाका छोड़ने की वार्निंग दी है। गजा सिटी के मज़ाफ़ात में हमास के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इस हमले में फ़ौजियों पर फायरिंग के साथ एक टैंक में धमाका भी हुआ। इसराइली निहाल ब्रिगेड के कई फ़ौजी जख्मी हुए। कतर और अमरीका की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान कोशिशें जारी हैं। हमास ने 60 रोज़ा जंग बंदी और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले यरगमानियों की रिहाई की पेशकश की है और मुज़ाकरात के लिए अपना मुस्बत जवाब दिया है। इसराइल अब भी मुआहदे की शराइत पर गौर कर रहा है। स्पेन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान किया है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने टेलीविज़न पर खिताब करते हुए कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ाने के लिए इसराइल पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करना है। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। आग की शिद्दत से इमारत मुनहदिम हो गई और इसके मलबे में दबकर फायर ब्रिगेड के 4 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। 2 एहलकारों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त 11 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर और 1 स्नार्कल कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن باصلاحیت برسر روزگار خواتین۔ اس پروگرام کے تحت گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں انڈسٹریل سٹیچنگ مشین آپریٹر کی تربیت مکمل کرنے والی 480 طالبات میں سرٹیفکیٹ، جاب لیٹر اور وظائف کے چیک تقسیم کیے گئے۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھائیں گے محمد اسلام غازی کی رپورٹ۔ خواتین کو باصلاحیت اور برسر روزگار بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے ہنرمند پنجاب پروگرام کے تحت گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ سے سالانہ 5000 طالبات تربیت حاصل کریں گی۔ دوران تربیت طالبات کو آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور تربیت حاصل کرنے کے لیے جدید مشینری کے ساتھ ساتھ مٹیریل بھی مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ سی ایم کے جو ویژن ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ خود کفیل ہو اور مردوں کے ساتھ باقاعدہ شانہ بشانہ پنجاب کی ترقی میں حصہ ڈالے۔ الحمدللہ 480 بچیوں کو ہم نے یہاں پہ اسکالرشپ دے کے اور ان کو انڈسٹری کے لیے تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوگا اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اب انویسٹر جو بھی ہمارے ملک میں آئے گا اس کو انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک سکلڈ ایچ آر بھی اویلیبل ہوگی۔ طالبات نے تربیت کے مفت مواقع فراہم کرنے اور انہیں برسر روزگار بنانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ اور ہم نے ادھر آ کے سیکھا جس کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ فیکٹریز میں بھی جاب وغیرہ مل رہی ہیں۔ ہم میڈم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، میڈم مریم نواز صاحبہ کا، کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ادارہ قائم کیا تاکہ ہم ہنرمند بن سکیں۔ تو میں دل سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ شکریہ مریم نواز صاحبہ، شکریہ ٹیپٹا پنجاب۔ 3 ماہ کا تربیتی کورس مکمل کرنے والی 480 طالبات میں فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ تیمور سعدیہ نے سرٹیفکیٹ اور فی طالبہ 30,000 روپے وظیفے کے چیک تقسیم کیے۔ خواتین کو ہنرمند بنانے کے چیف منسٹر پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مشین سٹیچنگ آپریٹر کا کورس مکمل کرنے والی طالبات کو مختلف گارمنٹس انڈسٹریز میں ملازمت کے مواقع بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ محمد اسلام غازی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شیخوپورہ۔ کون بنے گا ایشیا کا بادشاہ؟ دبئی میں دھواں، ابوظہبی میں طوفان، ہر بال پر جنگ، ہر رن پر شور، ایشیا کا سب سے بڑا ٹاکرا، 8 ٹیمیں، ایک چیمپئن، T20 ایشیا کپ 2025۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کا آج سے متحدہ عرب امارات میں آغاز ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ میں افغانستان اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں ابوظہبی میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ شام 7:30 بجے سے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی سے۔ ایشیا کپ میں کرکٹ کی حکمرانی کے لیے جنگ UAE میں چھڑنے والی ہے۔ T20 فارمیٹ میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں ایشیا کی 8 بہترین ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، عمان، متحدہ عرب امارات، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ہانگ کانگ شامل ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، عمان اور متحدہ عرب امارات شامل ہے۔ گروپ بی میں افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ہانگ کانگ کو رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑا ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم 11 مقابلوں کی میزبانی کرے گا۔ ابوظہبی اسٹیڈیم میں 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ گروپ مقابلوں کے بعد سپر 4 مرحلہ 20 ستمبر سے شروع ہوگا۔ 2 بہترین ٹیموں کے درمیان فائنل 28 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ اب تک ہونے والے 16 ایڈیشنز میں بھارت سب سے زیادہ 8 مرتبہ چیمپئن رہ چکا ہے۔ سری لنکا نے 6 اور پاکستان نے 2 مرتبہ ایشیا کپ اپنے نام کیا۔ گرین شرٹس نے سن 2000 اور 2012 میں ایشیا کپ جیتا تھا۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ ممبر قومی اسمبلی محمد خان ڈاہا نے ٹیبل ٹینس اکیڈمی کا دورہ کیا۔ کلثوم بشیر احمد کی رپورٹ۔ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے تاکہ نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچایا جا سکے۔ ممبر قومی اسمبلی محمد خان ڈاہا نے ٹیبل ٹینس اکیڈمی کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے گرلز اور بوائز کھلاڑیوں کے میچز دیکھے اور کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت جو میڈم مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب یہ جو سپورٹس کو انکریج کریں یوتھ میں، کیونکہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے سپورٹس، اور
इसमें टैलेंट भी आता है। तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि नौजवान नस्ल को तंदुरुस्त रहने के लिए ना सिर्फ वॉक करनी चाहिए बल्कि बाकायदगी से खेलों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। तमाम बीमारियों से बचने के लिए उनको चाहिए कि ये जो है इस डेली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स को अपनी प्रेफरेंस बनाएं, ना कि सोशल मीडिया। हमारी जो यहाँ की गर्ल्स हैं जो यहाँ रेगुलर आके खेलती हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है और इंशाल्लाह आगे जाके भी जो सी लड़कियाँ हैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेलेंगी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए खास तौर पर, ताकि वो यहाँ आए खेलें और अपने खुद के लिए कुछ करें। हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि वो हमें सहूलियात दें जिससे बासलाहियत खिलाड़ी आगे आए और सूबाई और कौमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करें। तो बच्चों को भी चाहिए कि कोई और एक्टिविटी और या फिर टेबल टेनिस ही खेल लें। हुकूमत अगर इसी तरह ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को सहूलतें फराहम करे तो कोई वजह नहीं कि एक बासलाहियत खिलाड़ी मुल्क का नाम आलमी सतह पर बुलंद ना कर सके। कुलजम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। PTV न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहें। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।